Yes, sir. This is your first class. Yes, sir. Have you purchased books or not? Yes, sir. No, sir. No, What sir. is your first chapter? What is your name of first chapter? Today I shall discuss changing trends and career in physical education. Okay? First chapter is changing trends and career in physical education. ठीक है? First of all, I understand what is physical education. Okay? फिजिकल एजुकेशन मीनिंग क्या है पहले हमको देखना है ठीक है पहले एजुकेशन क्या है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन वी मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एजुकेशन ठीक है एजुकेशन एजुकेशन मीन्स इन शॉर्ट वे द वर्ड ऑफ एजुकेशन क्या है It is a process of gaining knowledge for the improvement of human beings. Education. और फिजिकल एजुकेशन क्या है हम फिजिकल एजुकेशन बॉडी मूवमेंट के थ्रू जो सीखेंगे उसको बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन ठीक है उसके फिजिकल इज रेफर्ड एज बॉडीली मूवमेंट्स और बॉडी एक्शंस है फिजिकल एजुकेशन ये करना you have to write down what is meaning of physical education. To understand the meaning of physical education, we must understand the meaning of education. Education has a wider meaning. It is a process of learning which modifies our behavior towards progress. Or in other words, it is process of gaining knowledge for the improvement of human beings. ठीक है? ये एक प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स का एक प्रोसेस है जो शिक्षा हम सीखते हैं तो उसका एक प्रोसेस को बोलते हैं एजुकेशन द वर्ड ऑफ फिजिकल इज रेफर्ड एज बॉडीली मूवमेंट्स और बॉडी एक्शंस thus we can say that physical education is a process of learning which modifies our behavior through bodily based actions okay physical education is an integral part of general education. It involves physical activities which help to achieve wholesome development of individual. ठीक है ये हो गया physical education. Physical education is a vast subject and it has been given importance from ages. Modern trends have increased its importance as modern physical education stresses on balanced development of body and mind. It brings harmonious growth and development so the optimum health as well as good personality can be developed. Physical education is studied as regular subject at per with other academic subject. जैसे हम other subject पढ़ते हैं वैसे physical education भी हम subject में रखते हैं. Other subjects से physical education it is necessary because it is all-round development. Then इस इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे पहले फिजिकल एजुकेशन क्या है इंट्रोडक्शन ये होना फिजिकल एजुकेशन हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इंडिया तो खेलो इंडिया प्रोग्राम में सडन एक इंट्रोड्यूस हुआ था वो कब हुआ था आपको मालूम है खेलो इंडिया जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर अभी शुरू किए थे 2018 में 2018 में खेलो इंडिया प्रोग्राम शुरू हुआ था तो खेलो इंडिया प्रोग्राम बाय मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ये इंट्रोड्यूस किए थे स्पोर्ट्स अफेयर्स यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो ये कमिटी है
उसको इंट्रोड्यूस किए थे 2018 में। और ये हो गया इंट्रोडक्शन। देन डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन हम सीखेंगे। डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। अकॉर्डिंग टू जेबिनास क्या बोले थे? फिजिकल एजुकेशन इज दैट फील्ड ऑफ एजुकेशन which deals with big muscles activities and their related responses. Physical education muscle activities and physical activities को हम related को हम physical education बोलते हैं definition उसका। Then Levinas बोले physical education is that field of education which deals with big muscles activities and their related responses. Levinas बोले and simple way physical education is the way of education through physical activities which are selected and carried on with regard to values in human growth, development and behavior. जेबिनस क्या बोले थे? फिजिकल education is that field of education which deals with big muscles muscles activities and their related responses responses ठीक है, ये जेबिनास बोलते हैं। देन इससे सिंपल हम फिजिकल एजुकेशन क्या बोलेंगे? द फिजिकल एजुकेशन इज द वे ऑफ एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। ये एक माध्यम है, फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू जो माध्यम है दैट इज फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन दैट इज फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल सिंपल वर्ड हम लिखेंगे फिजिकल एजुकेशन is the way of education through physical activities ठीक है। Physical education is the way of education through physical activities and which are selected and carried on which regard to values of in human growth, development and behavior. आपका behavior, growth, human behavior का growth कैसे होगा वो उसी का एक जो शिक्षा देंगे उसी को बोलते हैं physical education. It is clear from the above definition the physical education is an integral and important part of education process which is learned through playful activities. ये हो गया आपका डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन हो गया। और एक डेफिनेशन में एक ऑथर का लिख लो, जैसे जेफ विलियम क्या बोलते हैं? जेफ आपको मैं बाद में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। जेफ विलियम विलियम्स क्या बोले? फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मैन फिजिकल एजुकेशन is the sum of a man's
of a man's physical activities selected and conducted. The activities selected and conducted to develop personality. ठीक है, ये जेएफ विलियम बोलते हैं फिजिकल एक्टिविटीज पर्सनल डेवलप पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए वो लिखते हैं फिजिकल एजुकेशन. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फिजिकल ये हो गया. देन सेकंड टॉपिक इज सेकंड पॉइंट इज एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन. एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन. Aim is the highest possible achievement or ultimate goal, remote goal. Aim revolves around a defined purpose and it is usually one. There are many objectives and may change from time to time. ठीक है, according to J.F. William क्या बोलते हैं, aim क्या है, हम main goal क्या है हमारा, उसको aim बोलते हैं. Aim of physical education. गोल जो है फिजिकल में गोल मैंने आपको सोचना है कि हम लास्ट ये एम तक हम पहुंचना है. दैट इज एम. उसको बोलते हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन. एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग थ्रू होलसम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी. ह्यूमन पर्सनालिटी कैसे डेवलप करेगा थ्रू फिजिकल एजुकेशन, दैट इज द एम. एम जेएफ विलियम बोलते हैं, ये जेएफ विलियम क्या लिखे हैं, एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन. एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज कंप्लीट living through wholesome development of human personality. Aim of physical education is complete living through. आपको कैसे ह्यूमन पर्सनालिटी डेवलप करेगा उसको एम हमारा होना चाहिए, वो जेएफ विलियम बोलता है. ठीक है, उसके बाद देन उसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन है. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, objective is the many objectives are here. Objective basically 4 objectives, that is physical development, social development, and psychological development, emotional development. That is the main 4 objectives. Basically 4 objectives are as told earlier, aim is the ultimate goal to be achieved. Often the aim is one, but to attain it, there may be many objectives and they may change from time to time in the same way. The aim of physical education is one, complete development of personality, but there are many objectives to achieve this. Many educationists have expressed their views regarding these objectives of physical education. According to J.B. Nash क्या बोले, जैसे neuromuscular development, emotional development, interpretive development, organic development. ठीक है, मगर from the objectives given by different educationists,
we can conclude that there are 4 objectives of physical education. First objective is physical development. Physical development. Okay, first objective. Then second is psychological. Sorry. Psychological development. Psychological development. ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया. देन थर्ड इज सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट. ठीक है, सोशल डेवलपमेंट. देन फोर्थ इज इमोशनल डेवलपमेंट. इमोशनल डेवलपमेंट. फिजिकल डेवलपमेंट कैसे? फिजिकल डेवलपमेंट हम कैसे एक्सरसाइज वगैरह फिजिकल एक्टिविटी करके फिजिकल डेवलपमेंट करेंगे, उसको हमको देखना है अभी. देन साइकोलॉजिकली कैसे हम टीम के साथ सारे टीम के साथ खेल रहे हैं, साइकोलॉजिकली कैसे हमको डील करना है, उसको देखना है. एंड सोशली हम सोशल बिहेवियर उसको बहुत टीम आए हैं, उसके साथ उनके साथ कैसे सोशली हम साथ में खेलेंगे, उसको सोशल डेवलपमेंट करना है. देन इमोशनली खेलने के टाइम कभी एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, देन इमोशनली हमको कैसे कंट्रोल करना है. दैट इज 4 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट. देन इन फिजिकल डेवलपमेंट, to achieve the ultimate aim of physical education, the objective of physical development has to be achieved. According to this objective, body should grow in a proper way. बॉडी ग्रो करना इन प्रॉपर एक रूल्स जो होता है उसी रूल्स और प्रॉपर वे में उसको डेवलप करना है, बॉडी को ग्रो करना है हमको. दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट. फिजिकल एक्टिविटीज हेल्प इन डेवलपिंग द बॉडी. आवर बॉडी इज काइंड ऑफ मशीन which grows and develops with physical activities. Physical development improves our neuromuscular responses and leads to maximum organic development. Thus, physical activities must be performed to develop optimum growth. The objective also guides a person to make his body strong, well-shaped, good-looking, good working of internal organs, good health, and improves the physical personality. ये हो गया फिजिकल डेवलपमेंट. ठीक है. देन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या कहता है? दिस objective helps to the psychological balance of an individual. Individually हम psychological balance कैसे रखेंगे वो हमको देखना है physical activity के through. Mental progress or mental development. This objective directs the growth and development in a sequential manner. This development gives identity to one's personality by good behavior. The positive thoughts and ideas guide the individual towards progress and hence make a person good citizen. ये पॉजिटिव थिंकिंग जो है उसको साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में हमको ऐड करना पड़ेगा. कभी भी कोई गेम हो रहा है, कभी कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उसको पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए हमको. दैट इज साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट क्या है? Man is a social animal. I cannot live without society. जनरल चीजें हम सोसाइटी में रहने के लिए हमको सोशल एनिमल बनना पड़ेगा. तो इसीलिए man is a part of society and has to follow the rules and regulations, traditions and laws of society. His achievements in society proves his identity. In society, man learns the socialization process. Society also helps to improve his status. This objective develops the social qualities like cooperative behavior, friendship, togetherness, honesty, obedience, sincerity, tolerance, adjustment, leadership, boldness, self-control, self-discipline, etc. The objective helps to stop the evils of society and brings up the progress of community. उसमें सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपको जो
क्राइम होता है, कोई होता है, उसका डेवलपमेंट के लिए हम कैसे सोसाइटी के साथ मिलके चलना है, वो सोशल डेवलपमेंट सिखाता है। Then emotional development. Emotions are very important part of optimum development of man personality. Emotion like love, hate, anger, jealousy, aggressiveness, cheerfulness, pleasure, anxiety, etc. are parts of human personality. These emotions help to achieve optimum progress. Thus, it helps to achieve aim. इमोशनल पर्सनैलिटी मेन इंपोर्टेंट दैट इमोशनली हम जैसे कोई गुस्सा हो जाते हैं खेलने के टाइम, उसके बाद हम अचीव नहीं कर पाएंगे गोल को, जो एम जो हमारा है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। ये है इमोशनल। इमोशनली हमको स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव हो गया और ऑब्जेक्टिव ही हो गया। कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। हमारा कैरियर क्या है? हम जैसे फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, कैरियर क्या बन सकता है हमारा कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। कैरियर ऑप्शन में खाली हम फिजिकल टीचर ही बनेंगे क्या? नहीं, फिजिकल टीचर के साथ आप बहुत कुछ बन सकते हैं। आप बहुत अच्छा कैरियर है इसमें, ऐसा नहीं खाली फिजिकल टीचर बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है कि हम जैसे स्कूल में फिजिकल, स्कूल और कॉलेज में फिजिकल टीचर बन सकते हैं एज ए टीचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। देन सेकंड इज एज ए कोच, देन एज ए फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, देन ए फिटनेस ट्रेनर, देन एज ए स्पेशलिस्ट और ऑफिशियल गेम। शॉर्ट ये में लिख देते हैं ऐसे, एज ए टीचर बन सकते हैं आप। The second is as a coach, third is as a physical training instructor, training instructor. ठीक है। फोर्थ इज फिटनेस ट्रेनर, जो जिम भी में रहते हैं, फिटनेस ट्रेनर, ना, हाँ, ट्रेनर। देन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ठीक है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में लिख सकते हैं। डाइटिशियन भी बन सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी बन सकते हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट भी बन सकता है। देन एम्प्लॉय भी बन सकते हैं, स्पोर्ट्स एम्प्लॉय भी बन सकते हैं। स्पोर्ट्स वैकेंसी निकलता है सब स्पोर्ट्स कोटा में, वो एम्प्लॉय स्पोर्ट्स एम्प्लॉय उसको बोलते हैं, स्पोर्ट्स एम्प्लॉय। बहुत पोस्ट निकलता है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कोटा में, तो स्पोर्ट्स एम्प्लॉय बन सकते हैं। ये सारे जो है उसका ऑप्शन है, आप जिसमें जाना चाहते हैं जा सकते हैं। various physical education course in India. Various physical education courses in India. Various physical courses in India. Physical education course क्या है? The career making option in the subject of physical education is not easy. It has wide variety of its activities along with good status or job professions. Physical education provides lot of career options like as a player, as a coach, as a physical education teacher, as a sports journalist, as a umpire, referee, as a commentator, as a fitness instructor. There are various training instruction for promoting academic and skill qualification in physical education. For adopting physical education as a profession, one needs qualification. The courses such as DP,
आप बीपीए ओब्लिक बीपीए, बीपीए कोर्स होता है हमारा बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, दैट इज सेम बीपीए। बीपीए कोर्स होता है दैट इज 4 ईयर कोर्स है। ये बीपी इक्विवेलेंट बीपी है। एक्चुअली पहले क्या था कि ग्रेजुएशन के बाद बीपीएड होता था 1 ईयर कोर्स। अब क्या है कि प्लस 2 के बाद बीपी 3 साल और बीपीएड 1 साल, दैट इज 4 ईयर कोर्स हो गया है बीपी। देन एमपीएड मास्टर ऑफ बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन हो गया, ये मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन हो गया, दैट इज हो गया 2 इयर्स कोर्स। आफ्टर बीपीएड दैट इज एमपीएड करना है तो आपको 2 साल करना है, ठीक है, एमपी। देन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, ये सब कोर्स है आपके पास। ये दोनों मेन कोर्स है, जिसे किसी भी लाइन में आपको जाने के लिए बीपीएड सबसे पहले करना होता है, तब उसके बाद एमपीएड करना होता है। उसके बाद आप जो भी कर सकते हैं, एनआईएस वगैरह कर सकते हैं, ये मेन कोर्स है आपका 2। उसके बाद जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट, ये कोर्स होता है। ये भी 1 ईयर का कोर्स होता है, 1 ईयर का, ठीक है, 1 ईयर कोर्स होता है। देन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ये फिटनेस हो गया। देन सेकंड इज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स होता है, ये हो गया 1 ईयर कोर्स। फिटनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो 1 ईयर कोर्स है। और जर्नलिज्म कोर्स भी कर सकते हैं आप। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म कोर्स करते हैं, ये भी 1 ईयर कोर्स है, जर्नलिज्म कोर्स। और एक कोर्स होता है मास्टर डिग्री कोचिंग के लिए हमको जो है मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट्स कोचिंग, that is 2 year course, ठीक है। मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट्स कोचिंग, दैट इज 2 ईयर कोर्स होता है, ठीक है। देन डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग, दैट इज एनआईएस इसको बोलते हैं, एनआईएस डिप्लोमा कोर्स इन नेताजी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स, डिप्लोमा कोर्स में इन स्पोर्ट्स का होता है, वो 1 ईयर का होता है, 1 ईयर का, ठीक है। और सर्टिफिकेट कोर्स होता है, एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट्स एंड कोचिंग, ये होता है 6 वीक का। ये याद रखना है आपको, ये सब क्वेश्चन में आएगा कि कितना टाइप का कोर्स होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोर्स इन इंडिया, डिस्क्राइब, उसको लिखना है आपको। सर्टिफिकेट कोर्स होता है, सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स कोचिंग 6 वीक का होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। जैसे सर्टिफिकेट कोर्स कितना वीक का होता है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, पोस्ट
graduate diploma, postgraduate diploma in sports medicine. That is 2-year course. Postgraduate diploma in sports medicine after MPEd, ये जो है स्पोर्ट्स मेडिसिन आप ये किए हैं तो उसके बाद 2-year कोर्स करना है आपको, ठीक है, इतना कोर्स होता है। उसके बाद earlier physical education as a profession was not recognized in society and had poor social status. But the growing demands of educational institutions like school, colleges, universities, clubs, training centers, recreation parks, etc. has increased its status and recognition. Today, the professionals of physical education are easily adjusted in good status jobs. Thus, the profession is in great demand in educational field, private sector, public sector, industry, etc. For career in sports and physical education, one should have interest in physical education activities, sports and games. जैसे करियर भी आपको गेम्स में बना सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं गेम्स में खाली क्रिकेट, कितना उसके सामने कौन सी इंजीनियर और डॉक्टर, कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं है, तो इसीलिए आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कोई एक प्लेयर हो जाते हैं, जब कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको सब जानते हैं, मगर उसको इतना इंजीनियर डॉक्टरों को आप जानते हैं, कितना इंजीनियर डॉक्टर यहाँ जानते हैं, कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए आप कैरियर भी चूज कर सकते हैं एज ए गेम्स, एज ए फिजिकल एजुकेशन। थर्ड पॉइंट इज soft skills required for career in physical education. Soft skills क्या है? Soft skills required for career in फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। थर्ड स्किल्स क्या है? स्किल्स मीन्स कोई भी चीज हम करने से पहले, जैसे कोई गेम खेल रहे हैं, उसके बेसिक स्किल्स, बेसिक रूल रेगुलेशन, उसके स्किल्स क्या है उसको पहले मालूम करना होगा, उसके बाद जो है आप उसको खेल सकते हैं। जैसे बेसिक स्किल वॉलीबॉल, एज एग्जांपल वॉलीबॉल, बेसिक स्किल्स क्या है? सर फिंगरिंग सर, बस गुड फिंगरिंग सर डिफेंस सर, स्मैशिंग हो गया, ब्लॉकिंग हो गया और फिंगरिंग हो गया, देन सर्विसिंग हो गया, दैट इज हो गया बेसिक स्किल। और क्रिकेट में क्या है? जैसे बैटिंग हो गया, बॉलिंग हो गया, ये सब जो है बेसिक स्किल्स, दैट इज सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड। इंटरेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन, फर्स्ट पॉइंट इज interest in physical education. The individual interested for career in physical education must have interest and positive attitude towards its activities, games and sports. मेन इंटरेस्ट होना चाहिए आपको, गेम्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, जैसे पढ़ने में आपको इंटरेस्ट है, ऐसे गेम्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी जाके आपको आगे एम और गोल अचीव कर सकते हैं। देन गुड पर्सनालिटी एंड गुड हेल्थ, उसके लिए क्या है? इंटरेस्ट भी है और आपका हेल्थ परमिट नहीं कर रहा, आप खेल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए हमको पर्सनालिटी और गुड हेल्थ भी चाहिए। One should possess a good personality, good fitness and good health. Third is sound mind. For career in physical education, one should possess sound mind, mental stability and emotional balance. ये चीज होना चाहिए। Good sports performance, उस परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए। One should have played and performed well at sports at district, state और national and international level competition. कोई भी कंपटीशन होता है वो आपको उसका अच्छा परफॉर्मेंस आना चाहिए। लीडरशिप एबिलिटी, द लीडरशिप क्वालिटी, कॉम्पिटिटिव एबिलिटी एंड गुड सोशलाइजेशन स्किल एनहांस
the career option in physical education. Then sixth is good organization ability. One must possess good ability in organization skills, commanding voice, ability to organize and manage sports programs. ठीक है, डेडिकेशन होना चाहिए. One must be dedicated and loyal in promoting games and sports at every level. आपको जैसे गेम खेलने उसी पर डेडिकेशन होना चाहिए. हर चीज कोई भी काम में डेडिकेशन होना चाहिए. पढ़ाई में डेडिकेशन होना चाहिए. कोई बात कर रहे हैं उसमें डेडिकेशन होना चाहिए. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मोस्ट इम्पोर्टेंट. Sportsman spirit. One must possess high level of sportsman spirit with high level of social qualities like discipline, honesty, togetherness, self-confidence, friendship, faithful, loyalty, etc. ठीक है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में इतना होना चाहिए. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है ऑनेस्टी होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, देन टुगेदरनेस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए. दैट इज द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में ये सब चीज होना चाहिए. ठीक है. नॉलेज अबाउट डाइट और पोस्चर. नॉलेज भी होना चाहिए आपको. नॉलेज पोस्चर और डाइट के बारे में नॉलेज होना चाहिए. वन शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट डाइट, पोस्चर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट. ठीक है, ये होना चाहिए नॉलेज अबाउट स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड स्पोर्ट्स एक्सरसाइज. स्पोर्ट्स मेडिसिन, दैट मींस वन शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स एक्सरसाइज इन इट प्रिवेंशन एंड इट करेक्शन. जैसे कोई भी एक्सीडेंट होता है ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए. उसमें कुछ मेडिसिन वगैरह, उसके बाद आपको प्रिवेंशन एक्सरसाइज कुछ करना है. जैसे खेलने से पहले वार्मिंग अप करते हैं, तो वो सब जो है उसका स्पोर्ट्स एक्सरसाइज होना चाहिए. नॉलेज अबाउट बॉडी सिस्टम के बारे में. आप लोग तो साइंस के हैं, तो इसीलिए बॉडी सिस्टम क्या है वो सब चीज आपको नॉलेज होना चाहिए. वन शुड हैव नॉलेज अबाउट वेरियस बॉडी सिस्टम एंड इट्स वर्किंग. नॉलेज अबाउट इट्स गुड इंस्टीट्यूशन. गुड इंस्टीट्यूशन के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए. को जो प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, वो सब इंस्टीट्यूशन आपको नॉलेज होना चाहिए. One should gain good knowledge about this good institution and the courses offered there. Basically, हमारा जो है LNIP है ग्वालियर में, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है. उसमें